اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ پورا منصوبہ بندی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہو، نہ یہاں کوئی عدلیہ ہو، نہ کسی کے حقوق ہوں، جس کی آپ نے 26 کی رات کو دیکھا کس طرح قتل عام اندھیرے میں کیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا کوٹ رہے اور یہ کالا کوٹ اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، آئین کا تحفظ کرے، تو خدا را چھوٹے موٹے کسی لالچ میں مت پڑنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پارلیمنٹ نہیں رہ گئی، یہ محض نمبرز ہیں، یہ نمبرز ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، اور سپریم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کے آئے، تمہیں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اس لیے تم سپریم نہیں ہو۔ جناب ریاست علی آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسرے ہمارے وکلا بھائی نمائندگان جہاں تشریف لائیں، محبوب اشرف خان صاحب اور مزید دوست، میں سمجھتا ہوں، میں پہلی بات تو یہ اسد منظور بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیں آج یہاں اکٹھے کیا، پنجاب بھر کے نمائندگان کو اکٹھا کیا، اور آج کی جو ڈسکشن ہے اس کے نتیجے میں چند ایک باتیں جو آگے لے جانے کی ہے، جس کا منیر ملک صاحب نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے، صلاح الدین صاحب نے، ہمارے حیدر امام رضوی صاحب نے، اور یہ کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے اس کنونشن میں، میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس جنکچر پہ کھڑے ہیں، ملک جس جنکچر پہ کھڑا ہے، وہ بہت ہی خوفناک وقت ہے۔ اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ یہاں پر پہلے عدلیہ کو اندر سے تقسیم کیا گیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، پھر اب اس کے بعد عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا۔ بالکل صلاح الدین صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر پورا منصوبہ بندی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہو، نہ یہاں کوئی عدلیہ ہو، نہ کسی کے حقوق ہوں، جس کی آپ نے 26 کی رات کو دیکھا کس طرح قتل عام اندھیرے میں کیا گیا، اور یہ تو غالباً اس سے پہلے جلیاں باغ میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں کم از کم روشنی میں لوگ چہرے تو دیکھ سکتے تھے فائر کرنے والوں کے اور مظلوموں کے، انہوں نے اپنے چہرے بھی نہیں دکھائے، اور انہوں نے لاشیں بھی غائب کی، اور یہاں تک کہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اور وہاں سے لاشیں غائب کی، بلکہ جس کسی کے رشتہ دار لاحقین آئے ہیں اب لاش لینے کے لیے، ان سے سنا ہے کہ ایفیڈیوٹ دستخط کروائے کہ آپ نہیں کہیں گے کہ ہم لاش لے کے گئے ہیں۔ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کتنے لوگ اس رات قتل ہوئے، انوسنٹ لوگ، وہ لوگ جو صرف نہتے لوگ تھے، آپ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور ہم وکلا کو اس میں لیڈ لینی پڑے گی۔ یہ اگر ملک بچانا ہے تو ملک کا آئین بچانا پڑے گا، اور ملک کو آئین کو بچانے کے لیے وکلا کو سب سے آگے بڑھ کے حصہ لینا پڑے گا۔ جیسے کہ سب دوستوں نے کہا ہے، چند ایک لوگ ہر جگہ بکاؤ مال ہوتے ہیں، جو عہدے لیتے ہیں، جو مفادات کے لیے جاتے ہیں، اور ملک اور عوام اور قوم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ طبقہ پالا گیا ہے جن سے زبردستی ووٹ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ڈلوائے گئے، جن سے پیسہ دے کے، مال دے کے، زبردستی اٹھوا کے اب یہ وکیلوں میں صورتحال پیدا کر دی ہے انہوں نے، جو پہلے عام طور پر سننے میں آتی تھی کہ عام انتخابات میں ہوتی تھی۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کو ختم کرنے کا ہے۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تاکہ
हमारी हुकूमत को पूछने वाला ना हो। अगर 3 साल थे तो उसको 5 साल कराया गया है। ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट है जिसको रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की सूझती है। यहां पर जो चेयरमैन और स्पीकर हैं, मेरे नजदीक उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी को व्हील चेयर पर उसके अपनी लीडर की मर्जी के खिलाफ लेके आए। एक औरत रोती हुई आई और किसी ने उठ के कहा कि चेयरमैन साहब इसकी बात तो सुनो, इसका बेटा उठा लिया गया है। उसने कहा, वो बेशर्म चेयरमैन ने क्या कहा कि बाद में मेरे दफ्तर में आके बता देना, बोर्ड तो डालो जिस मकसद के लिए बैठा हुआ था। उसने खुद मेरे सामने कहा कि भाई मुझे ये तकलीफ है कि मुझे इस अदलिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो इसका मतलब ये है तुम्हारी पर्सनल ग्रीवेंस है। और फिर दूसरा ग्रीवेंस ये है कि नवाज शरीफ को इस अदलिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे भाई, जिन्होंने किया वो तो जा चुके हैं। तुम बदला जो है वो इस अदारों से लेने आए हो। तुम अदारों को तबाह करना चाहते हो। अदलिया का बदला तुम पुराने चीफ जस्टिस से लेने बैठे हो। हालांकि जहां तक इस यूसुफ गिलानी की बात है, उसने खुल्लम खुला 6 जजेस ने उसको कंटेम्प्ट में पहले कंडेम किया था, फिर उसके बाद आया। तो कहने की बात यह है, मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता, काफ़ी वक्त है और ख़ास तौर पे हमारे कराची से आए हुए मेहमानों ने फ्लाइट में जाना है। मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये मसला किसी एक फर्द का, एक बार एसोसिएशन का, एक बार काउंसिल का नहीं। आप खुदारा हर बार एसोसिएशन में पहुँचे, तहसील बारों में, डिस्ट्रिक्ट बारों में, हर जगह पहुँचे और खुदारा उन तक ये पैगाम पहुँचाएं कि अगर आप चाहते हैं कि ये काला कोट रहे और ये काला कोट इस मुल्क में अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो खुदारा छोटे मोटे किसी लालच में मत पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ ऑफिसर बनने ना बनने से, चंद पैसे मिलने या ना मिलने से। जब मुल्क ही खतरे में आ गया है, जब आपकी अदलिया ही खतरे में आ गई है, जब आपका आइन ही बेमानी होता जा रहा है, जब यहाँ पर हुक्म सिर्फ बावर्दी लोगों का चलेगा और दूसरी वर्दियां जो है वो बेकार हो जाएंगी, और ये वक्त भी दूर नहीं है जब मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, ये अदालतें नहीं होंगी। ये जो अदालतें जिसका जिक्र किया है कि ना ये कुछ देख सकती हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि भाई सुओ मोटो नोटिस लो, कल कत्ले आम हुआ है, तो वो कहता है हम तो देख ही नहीं सकते। और एक औरत उसके साथ बैठी अपने आप को जज कहती है, वो कहती है कि हम सुन ही कुछ नहीं सकते। हकीकत में उनकी ज़बानें भी ख़त्म हो चुकी हैं, ये बोल भी कुछ नहीं सकते। इस किस्म की अदलिया ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो कुछ ना कर सके, ना देख सके, ना बोल सके, ना सुन सके। ऐसी ही अदलिया चाहे, ताकि हम जो जी चाहे जुर्म, जो जी चाहे जुल्म, जो जी चाहे जबर करे, हमें कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भूल है इनकी, मुल्क ऐसे नहीं चला करते, मुल्क ऐसे कायम नहीं रहते। बगैर आइन के कोई मुल्क नहीं चल सकता। लिहाजा हम सबका फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं है, हम खड़े होकर आइन को बचाएं, अदालती निज़ाम को बताएं। किसी इंडिविजुअल जज की बात नहीं है। मैं उस जज को थोड़ा तहसीन पेश करता हूं, कराची के जज को, जिसने उस बेंच पर जिसका जो सरबराह सिलेक्ट किया गया है, उसके चीफ जस्टिस की मर्जी के खिलाफ, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की मर्जी के खिलाफ, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट 2 जजेस की मर्जी के खिलाफ एक सरबराह। इसलिए मेरे नज़दीक ये चीफ जस्टिस जो अपने आप को, जिसको मैं डी फैक्टो चीफ जस्टिस मानता हूं, ये डिजोरे नहीं है, ये जायज चीफ जस्टिस नहीं है, तीसरे नंबर से उठ के आया है। लेकिन हम चाहते हैं निज़ाम चले,
इस चीफ जस्टिस में दम खम नहीं है, इसकी मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना है जिसको आईनी बेंच का नाम लेते हैं। आपके सामने है, कभी ये इंसिडेंट हुआ है कि चीफ जस्टिस, दो सीनियर मोस्ट जजेस और उनकी मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए या बेंच बनाया जाए किसी किस्म का? ये कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगा। इस किस्म की बेबस जुडिशरी बनाई गई है, इस किस्म का बेबस चीफ जस्टिस बना गया है। इसलिए बिल्कुल सही मुनीर मलिक साहब ने कहा, हमारा पहला सबसे अहम डिमांड ये है कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से या किसी तरफ से भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया है, फुल कोर्ट बिठाई जाए, नॉट ए जज लेस, फुल कोर्ट बिठाकर आप इन केसेस का फैसला करें कि आया ये 26वीं तरमीम जायज है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं, ये जबरदस्ती उठा के लोग लाए उनकी है कि नहीं, ये जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वोट डलवाए गए हैं, ये चेयरमैन और स्पीकर, इन्होंने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्या किरदार है, और उसके बाद हम इनको आर्टिकल 6 के मुकदमात में घसीटे। ये कौम के लिए जरूरी होगा ताकि आइंदा से इस किस्म के बेज़मीन लोग इस मुल्क के ऊपर हावी ना हो सके। तो मेरे भाइयों, ये पार्लियामेंट नहीं रह गई, ये महज नंबर्स हैं, नंबर्स। इतने नंबर हो गए, इतने नंबर हो गए, कोई कुर्सी पे आ रहा है, कोई जो कंधे पे उठा के लाया जा रहा है। ये नंबर्स हैं, ये कहते हैं हम सुप्रीम हैं, और सुप्रीम तो वो होते हैं जो अपने पांव से चल के आए, तुम्हें तो उठा के लाया जाता है, इसलिए तुम सुप्रीम नहीं हो, तुम सिर्फ महज नंबर्स हो। अगर कुछ दान भी जहां तक एग्जेक्टिव है, वो तो कोई है ही नहीं, स्वाय पपेट्स बैठे हुए हैं, कोई अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई चीफ मिनिस्टर कहता है। ये दे आर नथिंग बट पपेट्स ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी के मुताबिक ये चलते हैं, और ये अपना कोई फैसला नहीं कर सकते। ये सिर्फ बैठे हैं झूठ बोलने के लिए। यहाँ 20 हमारे लोग जो है वो बेगुनाह कत्ल कर दिए गए हैं, और ये बैठकर कौमी सारे टेलीविजन सामने कहते हैं कि वहाँ हुआ ही कुछ नहीं है। इतने बड़े झूठे, और बाज़ तो बेचारों ने बड़ी चेहरा बना हुआ दाढ़ी रख के, अफसोसनाक बात है, जानते बूझते हुए झूठ बोलते हैं, कौम को गलत बयानी की तरफ लेके जाते हैं। तो लिहाजा ये हम वकला पर, कौम सारी आपकी तरफ देख रही। मैं आपको अर्ज करूं, एक आखिरी उम्मीद हमें कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा से लेके लाहौर तक यही आवाज आती है कि सिविल सोसाइटी आपको देख रही है, कौम देख रही है, आप खड़े हो, हम फिर खड़े हो जाएंगे आपके साथ। इसलिए हमारा फर्ज बनता है सारी कंसिडरेशंस को, सारी धमकियों को, सारी जबरदस्तियों को, सारे लालचों को, सारे अहदें को ठुकरा के हम इस मुल्क को बचाएं और इसके आइन को बचाएं।